हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। So if the mind, we're going to do this experiment to prove how powerful the mind is. Yeah, there are many experiments you can do, but we can do the simple one if you Let's want. do this, stick with that one. Okay. A lot of pressure here. And what does this mean? Well, why don't you do it? Why don't Okay. you do it? Hold this string between your thumb and your forefinger. Just Yeah. hold it. Uh-huh. Rest your elbow comfortably on your thigh. Uh-huh. Oh boy. Okay. Yeah, rest it comfortably. I'll hold it still. Now, just while you're holding that still, mentally have the idea it's moving back and forth. Mentally have the idea that it's moving. Okay? Don't worry, it'll start moving and it'll start moving wider and wider. See, it's already doing that. Okay? In any direction you want. There you are. Now, once it's doing that, just change the idea in your mind. Instead of swinging it like that, it's going to start swinging like this in a different direction. Oh my Mentally. heavens. See? Now, mentally have the idea that it's going to start making circles. Just mentally have the idea. It's going to start making circles. There you are. See? Circles. Now bigger and bigger circles. There you are. Oh my heavens. Okay. I didn't think I could do it. I was feeling a lot of pressure here. Okay. Well, listen. Now, I can't believe it's doing it. yeah. And now have the idea that it's going to reverse the circle. So if it's making Oh no, circles, I don't know if I can do that. just have the idea. Okay. Just have the idea. That it's going to reverse the circle. Yes. Just keep that idea in your mind. You see, your expectancy determines outcome. Uh-huh. And as long as you're not attached to the outcome will be guaranteed. Okay. Whenever we fulfill a desire, whatever that desire is, certain things happen. Number one, we expect a certain outcome. Oh, it just There switched. you are. It See? just did it. See? I can't. And this is living proof that every cell in your body is eavesdropping on your internal dialogue. And by changing your internal dialogue, you can influence the chemistry. Even Sally's impressed. Even Sally's saying, I didn't think you could do it, but you did. Every cell? Every cell. How would this happen? Now, see, now this is amazing because if you can do this with a string, right, it means you can do it with your life. Yeah, you can do it with anything. You can fulfill any desire in life that you want because inherent in having the desire is the mechanics for its fulfillment. I don't have the same desires as you because nature gave me those desires that nature means to fulfill. दोस्तों, दुनिया मानती है इनको, है ना। ये ऐसे ही नहीं है। आज इतने बड़े शो, इतने करोड़ों लोग इनके और इनके बुक्स पढ़ना और ये सब चीजें, अरबों खरबों लोग ये मानते हैं इस चीज। और डिजायर, आपका जो डिजायर है, राइट, वो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म वो फुलफिल करेगा वो। और जो कुछ एक्सपेक्ट करोगे वो सारी चीजें आपको, योर ईच एंड एवरी सेल एंड बॉडी, योर इंटरनल डायलॉग्स, हमारे अंदर के जो डायलॉग है ना, ये इंटरनल डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ईश्वर बोलता है सही बात है, तो जो कहता है वो सही बात है। आज यूट्यूब चैनल चलाता हूं मैं, सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल है, 1,89,000 मेरे सब्सक्राइबर है। बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग ऐसे भी लोग देखते हैं कि अलग अलग जो वीडियो होती है, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक दिन में 100 पॉलिसी कैसे कर सकते हैं, ये भाई साहब 1 करोड़ कैसे कमा सकते हैं, इंश्योरेंस में 1 करोड़ कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। नहीं होता है। यू आर राइट। तुमको लग रहा है मैं डमी को बिठाता हूं, तुमको लगता है मैं किसी और को उठा के लेके आता हूं। व्हाट यू सी इज इंपॉर्टेंट। आप क्या मानते हो, आप क्या बिलीव करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, अप्रा विनफ्री, उसका नाम लेडी का, और जो दीपक चोपड़ा थे, जो माइंड के ऊपर में बहुत रिसर्च उन्होंने की है, उनके बहुत सारे बुक्स है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, टॉप के बिजनेसमैन, टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट, यूएसए के, राइट, कंपनी के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, ये सब इनको फॉलो करते हैं कि तुम जो सोचो वो बहुत सी चीजें वो करवाते हैं। देखिए, ये चीज पढ़ लो आप, ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। ये जो चीज मैंने लिखी है, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। कभी भी फेल होने से अफ्रेड मत बनो, कभी भी अफ्रेड मत करो, डरो मत, फेल होने से मत डरो।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगा ना, मना करेगा, नहीं नाम देगा, नहीं बात करेगा, इग्नोर करेगा, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, यही करेगा ना। डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड टू रिमेन द सेम। वहां का वहां रहोगे। अगर 6 लाख कमा रहे हो और 6 लाख के 6 लाख पे टिके रहना है तो मत करो। अगर आपको ये सब चीजें मजाक लग रही है तो मत करना, बिल्कुल नहीं करना। आप अगर कह रहे हो ये सब चीजें मजाक है, ठीक है, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सब चीजें मजाक है। और आप सब अगर ये सोचो ये सब चीजें बहुत गंभीर है और ये चीजों के ऊपर में रिजल्ट आता है सर, डेफिनेटली उन्हीं का रिजल्ट आता है जो मानते हैं, इस चीज को मानते हैं। 6 लाख से 60 लाख तक पहुंचना है तो ये जरूरी है, 6 के 6 पे रुकना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जहां हो वहीं रहो, कोई इश्यू नहीं है। असफलता का डर ही हमें सफलता से दूर ले जाता है। असफलता का डर है ना। डर किस चीज का है? मैंने बगल में बैठे हुए दोस्त से मैंने बात की, कोई ट्रेन में बैठा है, कोई मेट्रो में बैठा, मैंने उससे बात की तो मुझे डर लग रहा है। किस चीज का डर लग रहा है? उसने मना कर दिया तो, और उसने मेरे से बात नहीं किया तो, अगर वो इग्नोर कर दिया तो, अगर वो उठ के चला गया तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। काय का इंसल्ट हो जाएगा? क्या खूब लिखा है, मिल जाएगी मंजिल फटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक बार निकलने का प्रयास तो शुरू करो। ये बहुत फेमस हुआ है, आप सबको मालूम है। बेस्ट कोट ऑन फियर, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जिग जिगलर, इनके बहुत से बुक्स है, वेरी वर्ल्ड फेमस राइटर है, बहुत अच्छे अच्छे बातों से वो मोटिवेट करते हैं। उनकी बुक से मैंने फियर के लिए ये लिया है। वो फियर को क्या बोलते हैं? फॉरगेट एवरीथिंग। दो दो रास्ते हैं आपके पास में। अगर डर लग रहा है ना, कोई बगल वाले से बात करना है, पड़ोसी से बात करना है, कॉम्प्लेक्स में 400 घर है तो खड़खड़ाना है, डोरबेल बजाना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है, डर लग रहा है ना, डर लग रहा है, फॉरगेट एवरीथिंग और भाग जाओ। एजेंसी से भाग जाओ, अच्छी लाइफ से भाग जाओ, अच्छे पैसे कमाने से भाग जाओ। डर लग रहा है, मत करो। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, ऐसे कोई थोड़ी पॉलिसी लेता है, ऐसे कोई थोड़ी मानता है, राइट? भाग जाओ। सो अगर दो रास्ते हैं आपके पास में, अगर आपको डर लग रहा है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, भूल जाओ और भाग जाओ। कहां कहां भागोगे बॉस? कितने कामों में भागोगे? जो करोगे लोगों को तो मिलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे तो कोई पैसे दे नहीं देगा। ऐसे कोई हमारे उतने बड़े कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं 10 20 25 50 करोड़ के, हाँ कि बैठे बैठे हम भाड़ा खाए। सो एफर्ट्स तो लगने ही लगने हैं। सो ये चीज अपने को करनी पड़ेगी। मैं क्या सीखा वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से जुड़ा तब मुझे एक चीज मुझे समझ में आई। मुझे ये चीज समझ में आया, आई वॉज अकाउंटेंट। मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन अगर मैंने नहीं दिया, मतलब स्टार्टिंग में बहुत शॉर्ट में दिया, बट मैं अकाउंटेंट करके मैंने 14 साल काम किया। 14 इयर्स काम करने के बाद एजेंसी तो ली हुई थी लेकिन चल नहीं रही थी। जब मैं मेरे काम को 10 साल 11 साल हो गए थे ना अकाउंटेंट करके, उसके बाद एजेंसी ली 1998 में, चल नहीं रही थी। आप ही के जैसे सवाल मेरे दिमाग में भी थे, लोग लेते नहीं है, लोग करते नहीं है, लोग सुनते नहीं है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना, लोगों से बात कैसे करना, हमको तो आता नहीं, हम तो ठहरे अकाउंटेंट आदमी, हम तो ठहरे कंप्यूटर के ऊपर में बैठ के एंट्रिया करने वाले आदमी, हम तो ठहरे एसेट्स लायबिलिटी ये सब चीजें बनाने वाले आदमी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, फलाना ढीकना, ये सब चीजों में लगे हुए आदमी हम तो। मुझे ये चीज जमता नहीं। लेकिन जब आईओई में आया, पहला बेसिक कोर्स मैंने जब किया सन 2000 में, आज से 23 साल पीछे, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि बॉस तुम्हें अप टू फाइनलाइजेशन तक अकाउंट लिखना क्यों आता है? बिकॉज 5 साल की पढ़ाई ग्रेजुएशन, उसके बाद में 2 साल का डबल ग्रेजुएशन। अगर मैंने किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर 7 साल अगर मैंने पढ़ाई की है, एक्सपर्ट नहीं बनूंगा मैं। मुझे समझ में आया कि मैं इंश्योरेंस में फेल क्यों हूं। आई एम नॉट अ फेल्यूर, बट आई हैव नॉट लर्न, दैट इज द फेल्यूर, दैट इज द बिगेस्ट फेल्यूर, कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे लोगों से बात करना। जो आदमी को आपके सामने जो बैठा है मुकेश जोशी, यह आदमी को 2 लोगों के सामने बात करने को जुबान नहीं खुलती थी बॉस, सच बोलता हूं। कोई बात यहां से मैं गलत नहीं बोलता हूं आप लोगों के बीच में।
आज के तारीख में खाली बोलने के पैसे लेता हूं मैं। जिसको बोलना नहीं आता था वो आदमी आज खाली बोलने के पैसे ले रहा है। LIC भी दे रही है मुझे। MDO 1 ने मीटिंग रखा, मेरा 900 एजेंट मेरे सामने बैठे थे, मेरी फीस LIC ने दी। कानपुर बुलाया, फ्लाइट का आने जाने का भाड़ा दिया मुझे, और 3 घंटा वहां में लेक्चर दे के आया एजेंटों को, और 3 घंटा लेक्चर दिया मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर को। 250 डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे सामने बैठे हुए थे। एक समय पे बोलना नहीं आता था। सीखना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न, वी आर अ ह्यूमन बीइंग माय डियर फ्रेंड। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात को, आज तक कोई मांसाहारी प्राणी, ध्यान से सुनना, कोई मांसाहारी प्राणी शाकाहारी बना? कोई मांसाहारी प्राणी शाकाहारी बना? कोई मांस खाने वाला शेर घास फूस खाने लगा? नहीं। करोड़ों वर्षों हो गए, करोड़ों वर्षों की सृष्टि में कोई जानवर मांसाहार से शाकाहार पे नहीं आया, और शाकाहार जानवर मांसाहार पे नहीं आया। कोई हिरण ने मांस खाना शुरू नहीं किया, घास ही खाएंगे वो लोग। और अरबों खरबों साल जब तक ये सृष्टि रहेगी, चांद और तारे रहेंगे, तब तक हिरण घास ही खाएगा और शेर मांस ही खाएगा। लेकिन हम इंसान हैं, आज करोड़ों इंसान जो मांसाहार पे थे वो शाकाहार पे आ गए, और करोड़ों इंसान जो शाकाहार पे थे वो मांसाहार पे आ गए। वी कैन चेंज अवरसेल्फ। ईश्वर ने ये इंसान को ही ताकत दी है और किसी को यह ताकत नहीं दी। वी कैन चेंज अवरसेल्फ। इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे ना आए? अगर सीखने पे, हमेशा कहता हूं बॉस, सीखने पे तो हवाई जहाज भी महिलाएं उड़ा देती है, और नहीं सीखने पे तो 2 पहियों की साइकिल भी ढंग से नहीं चल पाती। सारा मामला सीखने का है। ये सीखने वाला मामला क्लियर हो गया ना आपका बॉस? और हम क्या करते हैं मालूम है? सीखने वाले मामले को तो हम कंपेयर करते हैं पैसों के साथ। 300 की क्लास है तो करेंगे, 30,000 की क्लास है, नहीं बॉस ये इतना पैसा थोड़ी होता है। जैसा पैसा होगा वैसे सिखाया जाएगा ना मेरे भाई। एक्सपर्ट को सुनना है तो फिर एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए। आपने अनेकों को सुना होगा, लेकिन आज मुकेश जोशी को जो पहली बार सुन रहे हैं, आज समझ में आ रहा होगा उनको कि क्या क्वालिटी होती है, बोलने में क्या क्वालिटी होती है। Everything is learning, boss. Everything, and we human being, we can learn each and everything. हर चीज हम सीख सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है पॉलिसी नहीं खेला जाए यार? कोई मेरे से ढंग से बात कैसे नहीं करे? कोई मेरा फोन कैसे काट दे? किसकी मजाल क्या कि मेरा फोन काट दे? अपने आप को उस लेवल के ऊपर में लेके आओ, उस हाइट के ऊपर में लेके आओ।